Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mubin and I'm from MK Preparations. Today, the topic we're going to discuss about is the membrane physiology and senses. So, students and candidates, this topic is very, very much important for the preparation of different competitive exams like Punjab Public Service Commission, PPSC, Sindh Public Service Commission, SPSC, Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission, KPPSC, Federal Public Service Commission, FPSC, and Balochistan Public Service Commission, BPSC. As well as different students जो हैं वो अपने exams के लिए if they want to secure admission in medical or related to the medical fields, so they can also watch this video. It would be very helpful. So in membrane physiology and senses, इसमें हमने जितना भी data collect किया है, it's been from the different source books which includes the FSC Biology, Federal Biology, Zoology Miller and Harley 5th and 10th edition, Hickman Zoology book, Campbell Biology, and Ravan Biology. So this topic is very, very much important, and this is a detailed video in which we'll discuss about the membrane physiology and the different senses present in our body. Okay, so the contents that we are going to discuss includes the structure of the cell membranes, fluidity of the membranes, functions of the cell membranes, movement across the membranes, nervous system, resting membrane potential, action membrane potential, synapse, the transmission of action potential between cells, nervous system, brain, hearing, and vision. So first of all, we'll discuss about the structure of the cell membranes. Okay. So we have a model that is known as the fluid mosaic model. The fluid mosaic model of the membrane structure. तो ये डायग्राम में आपको एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नजर आ रहा है मेम्ब्रेन का. What this model is describing, according to this model, there is a membrane that is having a lipid bilayer. There is a membrane that is having bilayer of the proteins and the phospholipids. Okay, means वो बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास दो layers होती हैं phospholipids की. ठीक है, phospholipids जो हैं they are found most abundantly in the different membranes of the cells or of the organelles. Okay, so the phospholipid bilayer forms a fluid sea in which specific proteins float like icebergs. As you can see here, जिस तरीके से एक सी की सरफेस के ऊपर आपको आइसबर्ग यानी आइस फ्लोट करती हुई नजर आती है, बिल्कुल उस तरीके से वो बता रहा है कि ये हमारे पास जो है वो दो फोस्फोलिपिड बाई लेयर है हमारे पास, यानी दो फोस्फोलिपिड की लेयर्स हैं, एक आउटर मोस्ट, ठीक है, और एक इनर मोस्ट. एंड बिटवीन दीज टू लेयर्स ऑफ द फोस्फोलिपिड्स आपको ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर लुकिंग लाइक द आइसबर्ग्स, द फ्लोटिंग आइसबर्ग्स. So being fluid, the membrane is in a constant state of flux, shifting and changing while retaining its uniform structure. ठीक है, तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन जो है वो अपनी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखती है. मूवमेंट जो है वो इजीली इनटू एंड आउट ऑफ द सेल मूव कर सकते हैं with respect to this membrane by crossing the membrane by the different processes. So the word mosaic is actually describing the different kinds of the proteins dispersed in the phospholipid bilayer. ठीक है, तो phospholipid bilayer है हमारे पास in which the specific proteins are embedded in a mosaic manner. So now the next question is the important points of the fluid mosaic model. So first of all, we're going to discuss about the first point, that is the phospholipid. Okay, we're actually going to discuss about the membrane components. Okay, so the first component is the phospholipid. So the diagrams are showing the phospholipid structure. So as you can see here in the diagram, this one is the head of the phospholipid. These rounded structures are the head of the phospholipid. This one is hydrophilic. ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी ये वाटर लविंग हेड है इसका.
पोलर वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक हेड है। और ये जो दो आपको थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, दीज आर नोन एज टेल्स। ये फैटी एसिड से मिलके बनी होती हैं, और दीज आर नॉन पोलर एंड दीज आर नोन एज हाइड्रोफोबिक टेल्स। ओके, सो द फॉस्फोलिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, जिसका मतलब ये है कि दे आर हैविंग वन पोलर एंड एंड वन नॉन पोलर एंड। इनके पास एक पोलर एक नॉन पोलर एंड होता है, ठीक है। So polar heads are present on the outer surface, on the outside of the cell, and the non-polar ends or the tails, they are going to face each other. Okay, and the non-polar tails are the fatty acid chains, and these are going to be repelled by the water. यानी ये hydrophobic है, water dreading है, ठीक है, water avoiding है. So that's why they are facing each other, as you can see here, in the external environment of the cell and in the internal environment of the cell water is present. So that's why ये जो polar head है, hydrophilic head है, they are facing the external and the internal environments because they are water loving. लेकिन ये जो hydrophobic tails हैं, these are water repellent, so that's why ये एक दूसरे को face कर रही हैं, they are pointed towards each other. Okay, so now the polar heads are having phosphate groups and the non-polar tails are having the fatty acid chains. ये इसकी कंपोजिशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये डायग्राम में हमें प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है। अगेन यहाँ पे एक और डायग्राम शो की गई है, जिसमें हेड को बताया गया है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक और पोलर हेड है, जो कि फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है, और ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर टेल्स हैं, जो कि फैटी एसिड से मिलके बनी हुई है, ठीक है। सो फैटी एसिड की नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट टेल्स एंड फॉस्फेट ग्रुप से बने हुए पोलर हाइड्रोफिलिक एंड वाटर लविंग हेड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। Now, the next member is the cholesterol. So, where is the cholesterol lying? So, you can see here between the phospholipid bilayers, these molecules are actually the cholesterol molecules. So, cholesterol is present in the plasma membrane and organelle membranes of the eukaryotic cells. ठीक है, prokaryotic cells की जो membranes हैं, they are not having the cholesterol. एंड कोलेस्ट्रॉल जो है, इट इज एम्बेडेड इन द इंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे जो है ये लोकेटेड होता है कोलेस्ट्रॉल, एंड इट हेल्प मेक द मेम्ब्रेन लेस परमिएबल टू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ये जो है वो गुजरने की इजाजत नहीं देता, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हेल्प स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है एक रिजिड स्ट्रक्चर है। कोलेस्ट्रॉल एक एक्चुअली जो है एक स्टीरॉयड है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रिड्यूस कर देता है एट द मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। एंड देन the third component is the membrane proteins. So the membrane proteins includes the outer peripheral proteins and the embedded or inner intrinsic proteins. ठीक है, तो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं। एक तो जो हमें सरफेस पे नजर आती हैं, इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। एज यू कैन सी हियर, ये सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये पेरिफेरल है। लेकिन ये जो फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड हैं, दीज आर नोन एज द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है जी? दे आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द आयंस और द अदर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड जो बॉडी, जो हमारे पास सेल की इंटरनल साइड है, जहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी हियर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, ये माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जो सेल का स्केलेटन यानी साइटोस्केलेटन बना रही हैं। तो जो हमारे पास intrinsic proteins हैं, some of the intrinsic proteins are connected to these cytoskeletal elements. Okay, now we are having some functions of the membrane proteins. तीन हमने पार्ट्स अभी तक देखे हैं, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, और थर्ड पार्ट था प्रोटीन्स, ठीक है। अब हम प्रोटीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखने जा रहे हैं दैट आर प्रेजेंट इन योर मेम्ब्रेन्स। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन इज द ट्रांसपोर्ट। हर फंक्शन के साथ आपको डायग्राम दिखाई गई है, यानी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ऑन द लेफ्ट साइड, ये जो डायग्राम है लेफ्ट साइड पे, ये क्या शो कर रही है?
that a protein is allowing the movement of the molecules or the selective particles across the membrane. ठीक है, कि a protein that spans the membrane may provide a hydrophilic channel across the membrane that is selective for a particular solute. यानी ये जो प्रोटीन है ये स्पेसिफिक चैनल बनाती है और इस चैनल के थ्रू मॉलिक्यूल्स along the concentration gradient from higher to lower direction easily move कर सकते हैं. And on the right side, there is the transport protein that shuttles the substances from one side to the other by changing its shape. जैसे हम देख सकते हैं फर्स्ट जो प्रोटीन थी उसमें किसी किस्म का उसमें शेप चेंज आपको नजर नहीं आ रहा, बट इन द सेकंड प्रोटीन ये जो प्रोटीन है इंट्रिंसिक प्रोटीन इट्स गोइंग टू चेंज इट्स शेप. ओके, and during the shape change the energy will be provided by the hydrolysis of the ATP. एंड देन ये क्या करेगी मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाएगी. ठीक है, एक्टिवली मूव करवाएगी मॉलिक्यूल्स को बाय चेंजिंग इट्स शेप. बाय यूजिंग एटीपी एनर्जी it will cause the movement of molecules from lower to the higher concentration. Now the second function of the membrane proteins is the enzymatic activity. That proteins are working as enzymes. Okay, enzymes are globular proteins. So what the enzymes are actually doing, enzymes are having the active site. enzymes के ऊपर एक active site होती है. ठीक है, और इस active site के साथ एक specific substrate जो है वो attach होके product में convert होता है. ठीक है, and in some cases, the enzymes in the membrane are organized as a team that carries out sequential steps. जैसे कि metabolic pathways में होता है, जैसे respiration और photosynthesis. इनमें a lot of chemical reactions हैं और हर reaction के अंदर एक specific enzyme use होता है और ये enzyme एक series में work करते हैं to convert the substrates into products. Okay, so the next one is the signal transduction. So, a membrane protein, or you can say a receptor, may have a binding site with a specific shape that fits the shape of a chemical messenger, such as a hormone. तो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स होती हैं इनका ये काम होता है कि इनके पास जो है वो एक रिसेप्टर साइट होती है जिसके साथ स्पेसिफिक हार्मोन आके अटैच होगा. ठीक है, इन प्रोटीन्स के ऊपर एक रिसेप्टर साइट है जिसके साथ स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यानी एक स्पेसिफिक हार्मोन वगैरह अटैच होगा आके ताकि एक स्पेसिफिक जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो प्रोसीड कर सके. ठीक है, एंड एक्सटर्नल मैसेंजर may cause the protein to change the shape, allowing it to relay the message to the inside of the cell by binding to the cytoplasmic protein. ठीक है, इसका काम ये होता है कि इस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर रिसेप्टर होता है, तो सेल के बाहर से कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कोई हार्मोन आके अटैच होगा, देन उस हार्मोन को जो है वो ट्रांसपोर्ट आउट कर दिया जाएगा इनटू द सेल सो दैट ये कोई एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन को एक्टिवेट कर सके. देन है जी हमारे पास सेल टू सेल रिकॉग्निशन. तो प्रोटीन्स, एक सेल की जो प्रोटीन्स हैं दे आर इनफ टू रिकॉग्नाइज द अदर सेल बाय बाइंडिंग द प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ दैट सेल. ठीक है, तो कुछ जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स का मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जब आपस में कंबाइन हो तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं. तो ग्लाइकोप्रोटीन्स सर्व एज द आइडेंटिफिकेशन टैग्स. ओके, दे आर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ अदर सेल्स. हर एक जो सेल की मेम्ब्रेन है उनमें स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, यानी ये प्रोटीन्स हैं दे आर अटैच्ड विद द कार्बोहाइड्रेट्स, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं. हर सेल की मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और दे आर गोइंग टू अटैच विद द ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द other cell so that they can recognize the specific cells, and these are short lived bondings. नेक्स्ट क्या है हमारे पास इंटरसेलुलर जॉइनिंग. ठीक है, so membrane proteins of the adjacent cells may hook together in through the various junctions or the gap junctions or the tight junctions, और ये long lasting attachment है. Next one is the attachment to the cytoskeleton and the extracellular matrix. ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं they are going to attach with the extracellular matrix, यानी सेल के बाहर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा या सेल के अंदर जो साइट का साइटोस्केलेटन है इनके साथ जो है ये कोवेलेंटली या नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड होती हैं
so that they can maintain the cell shape, they can stabilize the location of the membrane proteins. Proteins that can bind to the extracellular matrix can coordinate the extracellular and intracellular changes. Okay. Okay, ji. So we have done with the phospholipids, we have done with the proteins and with cholesterol. Now the last component of the, or you can say the part of the cell membrane is the carbohydrate. ठीक है. तो जब कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रोटीन्स की सरफेस पे, एज यू कैन सी हियर, व्हेन द carbohydrates are going to attach with the proteins, they will make the glycoproteins. Okay. और जब carbohydrates जो हैं they are going to attach with the lipids, so they will make the glycolipids. So these are conjugated molecules. और जो glycolipid और glycoprotein का पूरा एक मिक्सचर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, इसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं. So, surface carbohydrate and portion of proteins and the lipids, they will make up the glycocalyx. यानी ये सेल का कोट कहलाता है, ठीक है. And glycocalyx के functions क्या होते हैं? It is involved in the fingerprinting process and it is involved in cell to cell recognition. जैसे हमने पहले भी देखा कि glycoproteins जो है वो एक सेल यूज करता है to identify the other cell. So for the cell to cell recognition and for the behavior of the certain cells, and the key component in coordinating cell behavior of animals. ठीक है. The next point हम discuss करने जा रहे हैं. This is the fluidity of the membranes. Okay, so the fluidity of the membranes, what it describes, according to this, membranes are not static sheets of molecules. यानी membranes जो है वो कोई stiff structures नहीं है, ठीक है, locked rigidly in the place. A membrane is held together by the hydrophobic interactions, means water repellent interactions, which are much weaker than the covalent bonds. A membrane remains fluid as the temperature decreases. Mostly जो हमारी membranes हैं, जब temperature decrease होता है, still ये fluid की form में ही exist करती हैं. तो ऐसी क्या चीज़ है जो इनको maintain कर रही है, इनकी fluidity को membrane कर रही है in case of low temperature? Usually we know कि जब किसी चीज़ का temperature decrease होता है, so it's going to be freezed out, ठीक है, उसके crystals बन जाते हैं. Then why or how it is possible कि जो membranes हैं उनकी fluidity still maintain है in response to decreased temperature? So the temperature at which a membrane solidifies depends on the type of the lipid. Okay, ये depend करता है कि लिपिड की कौन सी टाइप है. एज वी नो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिपिड्स हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड वो हैं दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दैट आर हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड वो हैं दैट आर हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, और वो लिक्विड हैं एट रूम टेम्परेचर पे. तो अगर हमारे पास किसी मेम्ब्रेन में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की अमाउंट ज़्यादा है, सो इट्स मीन्स के टेम्परेचर को कम करने पे भी वो चीज़ फ्रीज आउट नहीं होगी. जैसे यूजुअली फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेस हम घी यूज़ करते हैं, सो घी इज़ द सैचुरेटेड, एंड जो ऑयल यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग पर्पसेस, सो ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड है. तो हम देखते हैं कि विंटर सीजन में भी जो ऑयल है वो सोलिडिफाई नहीं होता बिकॉज इट इज अनसैचुरेटेड, इट्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है. अगर किसी मेम्ब्रेन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अमाउंट मैक्सिमम है, इट्स मींस के टेम्परेचर लो होने पे भी उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी. ठीक है. एंड कोलेस्ट्रॉल, the second is the role of the cholesterol. That cholesterol makes the membrane less fluid by restraining the phospholipid movement. ठीक है. ये इसको less fluid बनाता है. कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी membranes को less fluid करता है by restraining the phospholipid movements, and it hinders the close packing of the phospholipids. यानी ये allow नहीं करता हमारे phospholipids को कि वो move करें. For the unsaturated hydrocarbons, it prevents the packing and enhance the membrane fluidity. For the saturated carbons, you can see here कि saturated carbons की वजह से जो हमारे पास tails हैं phospholipids की, वो एक दूसरे के साथ closely packed हैं, यानी इससे membrane की viscosity increase होगी और उसकी fluidity कम हो जाएगी. Last है हमारे पास cholesterol. It reduces the fluidity at the moderate temperature by reducing the phospholipid movement. लेकिन at low temperature it hinders the solidification by disrupting the regular packing. ठीक है. जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है
कि ये जो फ्लूइडिटी होती है मेम्ब्रेन की, इसको कम करता है। जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो उसकी फ्लूइडिटी को ये कम करेगा, यानी इसका काम होता है मेंटेन करना फ्लूइडिटी को, ना ही बहुत ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर पे ये उनको बहुत ज्यादा फ्लूइड फ्लूइड होने देगा, ठीक है, उसमें उस फॉर्म में कन्वर्ट होने देगा, और ना ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो लो करने पे उनकी क्लोज पैकिंग होने देगा। तो इसका भी फंक्शन ये होता है कि इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो एक तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज द कोलेस्ट्रॉल, बोथ ऑफ these two molecules are going to maintain the fluidity of the membranes. So next are the functions of the cell membranes. It includes the regulating the materials moving into and out of the cell and from one part of cell to other. यानी मेम्ब्रेन का काम होता है कि सेल के अंदर और बाहर चीजों को मूव कराना, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव कराना। इसमें हम ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, ठीक है। Separate the inside of cell from the outside environment. It separates the organelles from each other and it provides a surface area on which chemical reactions can take place, ठीक है। इसके अलावा मेम्ब्रेन जो है वो सेल्स को भी एक दूसरे से सेपरेट करती है, और मेम्ब्रेन वो साइट है जहाँ पे बहुत से रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं फॉर द सेल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एज वेल एज फॉर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, यानी जो हमारे पास हार्मोन्स वगैरह हैं या एंजाइम्स वगैरह हैं। And now the membrane is allowing a lot of molecules to pass through it by different processes. तो मूवमेंट को क्रॉस करने की जो एबिलिटी है उसकी वजह से हम इसको, क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है कि वो पास ऑन हो जाए सेल के अंदर और बाहर, और कुछ को अलाउ नहीं करती। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो किस किस टाइप की मूवमेंट होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वो फिनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा प्रेजेंट हैं, एज वी कैन सी हियर मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई, और ये पूरा हमारे पास वाटर है, ये एक स्लिट है जो इनको सेपरेट कर रही है, उसमें छोटे छोटे से पोर्स हैं। तो यहाँ पे हायर से लोअर एरिया की तरफ डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहेंगे जब तक कि एक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, यानी दोनों साइड पे मॉलिक्यूल्स बैलेंस नहीं हो जाते। तो ये सिंपल डिफ्यूजन कहलाती है और इसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, as a frog inhales air containing oxygen, so this oxygen is going to be moved into the lungs and फिर लंग्स से ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगी ऑक्सीजन, और ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा होने की वजह से टिश्यूज में इजीली डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेट का मतलब होता है कि कोई चीज होगी, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो कि ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स को सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोटीन्स की बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होती हैं ये मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रही हैं, ठीक है। So carrier proteins, they are present in the plasma membrane. They can bind with the molecules and cause the movement of the molecules. Like you can see here, इस डायग्राम में, ठीक है, ये हमारे पास एक चैनल प्रोटीन है जो अपनी शेप को चेंज नहीं करती, ठीक है। और ये चैनल प्रोटीन जो है वो सिंपली एक चैनल बनाती है और मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर जाते हैं फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये एक कैरियर प्रोटीन है, ये क्या करती है, उन मॉलिक्यूल्स को पिकअप करती है, उनको अपने साथ अटैच करती है और शेप चेंज के थ्रू उनको एक हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में मूव करा देगी, ठीक है। सो लार्जर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स दैट आर नॉट सॉल्युबल इन लिपिड्स, दे रिक्वायर द असिस्टेंस, ठीक है, यानी इनको जरूरत होती है किसी ना किसी कैरियर प्रोटीन की कि वो इनको पकड़े और उनको ड्रॉप कर दें अलंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अदर प्रोटीन्स जो हैं वो चैनल्स बनाती हैं, ठीक है। सो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास that may diffuse through the protein channels or the pores in the lipid bilayer, and the example includes the glucose in the gut of the frog. It combines with the carrier protein to pass through the gut cells into the bloodstream, because we know कि हमारे पास जो gut होगी frog की उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में इसने मूव करना है इनटू द ब्लड स्ट्रीम।
तो ये कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से मूव करेगी, ठीक है। तो जो हमारे पास चीजें कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से मूव करती हैं वो हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और जो चीजें मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल्स, वो हैं जी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और द पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक द लिपिड्स, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन्स, दीज आर द कैरियर प्रोटीन्स, यानी ये मूव करवाएंगे चीजों को फ्रॉम हायर एरिया टू द लोअर एरिया बाय अटैचिंग टू देमसेल्व्स एंड बाय चेंजिंग देयर शेप्स। और इसमें एग्जांपल है ग्लूकोज की और अमाइनो एसिड की। और चैनल प्रोटीन्स हैं वो मूव करवाती हैं लिपिड्स को, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स को दैट आर नॉट सॉल्युबल इन लिपिड्स। ओके, सो द नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है बिल्कुल ये सिंपल डिफ्यूजन की तरह है, लेकिन हम इसमें वाटर को डिस्कस करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज द ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, डायग्राम है जिसमें शो किया गया है, सिंपल स्लिट है, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर एरिया टू लोअर एरिया सिंपली मूव कर रहे हैं, ऑस्मोसिस हो रही है इनकी। और इसमें एग्जांपल दी गई है, water molecules move into a frog's red blood cell when concentration of water molecule outside the blood cell is higher। यानी फर्ज कर लें कि ये हमारे पास जो है ये फ्रॉग का सेल है और इसके बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ इजीली ऑस्मोसिस हो जाएगी। ओके, एंड अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर एक सेल को क्रॉस करता है बाय द एक्वापोरिन्स, ठीक है। aquaporins जो हैं, these are going to fall into two general classes, those that are specific only for water and the others that allow the small hydrophilic molecules like the glycerols. Now we will discuss about the tonicity. ओके, सो टॉनिसिटी क्या है जी हमारे पास? इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। यानी जब हम बात करते हैं सोल्यूट की कंसंट्रेशन की, इस एक सेल के अंदर और बाहर सोल्यूट की रिलेटिव कंसंट्रेशन कितनी है, तो इस फिनोमिना को कहा जाता है टॉनिसिटी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो तीन फर्दर कैटेगरीज हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। एक ये सेल है हमारे पास रेड ब्लड सेल, सेल के बाहर, और ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, यानी एक एनिमल सेल को और प्लांट सेल को कंपेयर किया गया है। तो कोई भी हम इसमें से सेल ले लें, सेल के अंदर और बाहर जो है वो वाटर की अमाउंट अगर बिल्कुल इक्वल होगी तो ना पानी सेल के अंदर आएगा और ना ही बाहर जाएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द outer environment that has the same water concentration that is present inside. So this is known as the isotonic. Okay, solute concentration is same inside and outside the cell. सेकेंड है हमारे पास टर्म जिसमें हम बात करते हैं हाइपरटोनिक की। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स ज्यादा होंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, हम यहाँ पे सोल्यूट के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, वाटर के रेफरेंस से नहीं। वाटर एक सोल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है, हमें सोल्यूट की बात करनी है कि सेल के अंदर और बाहर सोल्यूट की अमाउंट कितनी है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल के बाहर जो है वो सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी, ठीक है, और सेल के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कम होगी। तो सेल के अंदर से पानी जो है वो इजीली जो है वो बाहर मूव आउट हो सकता है, as a result of which the cells are going to be shrinked. Okay, so this is known as the plasmolysis. So in hypertonic solution there is a higher concentration of solute outside than inside the cell. Okay, this condition is also known as crenation, means shrinkage of the blood cells is also known as crenation of the blood cells. Now the third term is the hypertonic solution. In hypertonic solution there is higher concentration of lower concentration of solutes outside the cell. And now क्योंकि हमें पता है कि बाहर सोल्यूट्स कम है और अंदर ज्यादा है, सो वाटर विल गेट एंट्री इनटू द सेल from higher to the lower concentration area, as a result of which the cell is going to become turgid and it is going to become lysed, यानी सेल जो है वो फट जाएगा, उसकी bursting हो जाएगी. So this condition is for the hypertonic solution, cell swells and bursts. Now the filtration. फिल्ट्रेशन जो है एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बात करते हैं, और ऐसी ट्रांसपोर्ट की टाइप है जिसमें हम देखते हैं कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी प्रेशर दैट इज नोन एज द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी पानी के प्रेशर की वजह से
ब्लड प्रेशर की वजह से जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम इनटू टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ओके, और इसमें सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे हमारे ब्लड कैपिलरीज में जो है वो ब्लड कैपिलरीज जो है वो फेनेस्ट्रेटेड होती हैं, इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जब ब्लड कैपिलरीज में अमाउंट ज्यादा हो जाती है किसी भी मॉलिक्यूल की, आइदर वो वेस्ट मटेरियल्स हैं या कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैपिलरीज से फिल्ट्रेशन के थ्रू यानी इन पोर्स के थ्रू होते हुए मूव करके जाएंगे टिश्यूज में। और अगर हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो वेस्ट जो है इसमें किडनीज आ जाती हैं कि इसमें कैपिलरीज के थ्रू जितना भी वेस्ट आता है वो फिल्टर आउट होके चला जाएगा किडनीज, और फिर किडनीज से बाहर, ठीक है। So, the large molecules such as proteins do not pass to the smaller membranes, and filtration take place in the kidneys. So, this is the example simply that I have mentioned earlier about the kidneys, that they are going to remove the wastes. Okay, now the next is an active transport in which the energy is required. So, active transport, or the uh, in case of active transport, we are going to discuss about the movement of molecules from lower to higher concentration. Okay, इसमें molecules against the concentration gradient move करते हैं from their lower to the higher concentration. So इसमें जो है वो molecules जब lower से higher की तरफ move करते हैं तो energy लगानी पड़ती है, क्योंकि अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को मूव पैसिवली नहीं करवाया जा सकता, तो इसमें एटीपी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। Okay, so the carrier proteins, these carrier proteins are called the uniporters. Okay, अब हमारे पास जो है the active transport process is just similar to the facilitated diffusion, except that the carrier protein in the plasma membrane must use energy. ये भी जो प्रोसेस है वो पूरा कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से ही हो रहा होता है। उसमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है और उसमें कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे भी कैरियर प्रोटीन्स ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और उसमें कैरियर प्रोटीन्स के अलावा एटीपी भी यूज करनी पड़ती है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो ये कैरियर प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट तरह की हैं। कुछ होती हैं यूनिपोर्टर्स, यूनि का मतलब होता है वन, यानी वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल या आयन की मूवमेंट करा सकती हैं। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, यूनिपोर्टर्स यानी एक टाइम पे एक ही मॉलिक्यूल की मूवमेंट करा रही हैं। फिर कुछ है हमारे पास सिम्पोर्टर्स, जो एट अ टाइम दो मॉलिक्यूल्स या आयंस की इन दी सेम डायरेक्शन मूवमेंट कराएंगी। उसको समझने के लिए हम इसके साथ एक और मॉलिक्यूल अटैच कर लेते हैं, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, एट द सेम टाइम दोनों मूव करेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू दीज प्रोटीन्स। फिर है एंटी पोर्टर। एंटी पोर्टर वो है, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, जो कि एट द सेम टाइम दो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कराएंगे। लेकिन ये वाली जो प्रोटीन्स हैं वो एक प्रोटीन को एक डायरेक्शन में और दूसरी प्रोटीन को दूसरी डायरेक्शन में मूव करवाती हैं, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे फ्रॉम द लोअर टू द अपर साइड द circular shape molecules are moving, and from upper to lower side the square shape molecules are moving. So at the same time दो opposite molecules, दो molecules opposite direction में move कर रहे हैं, तो इसको हम एंटी पोर्टर कहते हैं, ठीक है। ओके, so one active transport mechanism is which in which sodium potassium pump is involved, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का काम होता है कि एक्टिवली सोडियम और पोटेशियम आइंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाना, और इसको हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स में भी डिटेल में स्टडी करेंगे। Now the bulk transport. In case of bulk transport, we're going to discuss about the movement of the larger molecules, or you can say the food molecules, ठीक है। जो बल्कि चीजें हैं हमारे पास, जो आइंस की फॉर्म में नहीं है, जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं है, जो फूड की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, जिनकी सेल को जरूरत होती है, एंड सेल नीड टू एनगल्फ देम। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट आती है एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंड साइटोसिस यानी सेल के अंदर की मूवमेंट, मटेरियल्स की मूवमेंट टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द सेल। सो एंडोसाइटोसिस में ये पूरा एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है। दीज आर द you can say food particles. When they're going to come in contact with the membrane is going to invaginate, and then these ends are going to join together. A food vacuole containing the food molecule is being formed as a result of endocytosis. Second process is exocytosis, in which the molecules or the food contents or the wastes are going to move out from the cell. तो इसमें क्या होता है जी कि ये जो हमारे पास एक वैक्यूल है दैट इज हैविंग द वेस्ट पार्टिकल्स, इट विल गेट इन कांटेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
and now it is going to release out the waste materials by the process of exocytosis. एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में एक डिफरेंस ये है कि एंडोसाइटोसिस में जो साइटोप्लाज्म, ये जो हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन है, वो यूज हो रही होती है, लेकिन एक्सोसाइटोसिस में इट्स गोइंग टू बी रिपेयर्ड. नेक्स्ट इज द थ्री फॉर्म्स ऑफ द एंडोसाइटोसिस. फर्स्ट वन इज पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. तो पहले है हमारे पास पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस में हम बात करते हैं लिक्विड मटेरियल्स की. ठीक है, पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस ही हो रही है, लेकिन इसमें जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल मूव करेंगे, दे आर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल है इसमें, किडनी सेल्स ऑफ द फ्रॉग, दे आर गोइंग टू टेक इन फ्लूइड टू मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस. सेकेंड है जी फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, कोई सॉलिड पार्टिकल, एज यू कैन सी हियर, द फूड और एनी अदर पार्टिकल, दिस सॉलिड पार्टिकल इज गोइंग टू बी एनगल्फ्ड बाय द सेल. ठीक है, और इसमें एग्जांपल है व्हाइट ब्लड सेल्स, जो फ्रॉग के हैं या ह्यूमंस के हैं, ये किसी बैक्टीरिया को, वायरस को अगर एनगल्फ कर लेते हैं, सो दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ द फेगोसाइटोसिस. नाउ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. तो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे, जो कि दिस वन इज द रिसेप्टर. ओके, और ये रिकॉग्नाइज कर देती है एक स्पेसिफिक किस्म के मॉलिक्यूल को. ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स की स्पेसिफिसिटी की वजह से है. ठीक है, तो वो रिसेप्टर्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनके रिसेप्टर्स सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, only these molecules will be allowed to get entry into the cell. So that's why a specific molecule will get attached with the receptor, और फिर इस molecule को जो है वो vacuole की form में engulf कर लिया जाएगा. So example include the intestinal cells of the frog take up the large molecules from the inside of the gut. Okay, so our next part is the nervous system. So first of all, we'll discuss about the neurons, that are the basic structural and the functional units of the nervous system. Okay, so we'll have a brief introduction of the neurons here. The functional and the structural units of the nervous system are highly specialized cells that are known as the neurons. And neurons जो हैं, they are going to produce the signals in the form of impulses. कि impulse की form में, यानी करंट की form में एक signal generate करते हैं, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और फिर दूसरे से नेक्स्ट न्यूरॉन, और अल्टीमेटली जो है वो अपने एक टारगेट या जो एक फाइनल सेल होता है, एक इफेक्टर होता है, वहां तक ये सिग्नल उसको ड्रॉप करते हैं. ठीक है, so there are three types of the neurons. The first one is the sensory neuron. ठीक है, so sensory neurons जो हैं, ये एक साइड से कनेक्टेड होती हैं रिसेप्टर्स के साथ. तो ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसमें हम न्यूरॉन्स को डिस्कस करते हैं, दैट आर सेंसरी न्यूरॉन्स. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हैज द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है इंटर न्यूरॉन्स, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती हैं. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें तो उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स हैं. तो यू कैन सी हियर दैट द सेंसरी न्यूरॉन इज हैविंग वन एंड दैट इज कनेक्टेड टू द रिसेप्टर्स. ठीक है, ये रिसेप्टर्स के साथ कनेक्टेड है इसका, इस सेंसरी न्यूरॉन का एक एंड, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है सेंस करना, स्टिमुलस को रिसीव करना. ठीक है, रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, और these receptors are connected to the sensory neurons, और sensory neurons जो है ये इस मैसेज को लेके जाती है इंटर न्यूरॉन्स तक, that are present in the brain or the spinal cord. उसके बाद है जी हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स. इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है that they are going to receive the signals from the sensory neurons. ठीक है, और फिर उनको प्रोसेस करना, इनको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इसको ट्रांसमिट कर देना टू द मोटर न्यूरॉन्स. एज यू कैन सी हियर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द रिसेप्टर्स. ओके, दीज आर द टच रिसेप्टर्स, दीज आर द टेस्ट रिसेप्टर्स. इसलिए यहाँ पे दो सेंसरी न्यूरॉन्स को शो किया गया है, दैट आर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटर न्यूरॉन्स. अब इन दोनों से आई हुई इंफॉर्मेशन को इंटर न्यूरॉन्स प्रोसेस करेंगे, एंड देन they are going to send the response to the effectors through the motor neurons. अब जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट हो चुका है, और मोटर न्यूरॉन्स का काम है उस रिस्पॉन्स को इंटर न्यूरॉन्स से
रिसीव करना और इफेक्टर्स तक लेके जाना। तो नेक्स्ट न्यूरॉन्स हैं जी मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। दे आर गोइंग टू take the processed information from the interneurons. They're going to receive the processed information from the interneurons, and they will transport the processed information in the form of impulse to the effectors. Effectors जो है वो हमारे मसल्स भी हो सकते हैं या हमारी बॉडी के ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। अगर तो मसल्स हैं इफेक्टर्स की फॉर्म में, सो इट्स मीन्स दैट द मसल्स आर गोइंग टू contract or relax so that they can show the response. अगर वो ग्लैंड्स हैं, so glands are going to release the hormones. Now we'll discuss about the detailed structure of the neuron. So here is the detailed structure of the neuron. एक न्यूरॉन्स है उसके different parts होते हैं, ठीक है। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। हम वन बाय वन इनको देखेंगे। सेल बॉडी जो है, as you can see here in the diagram, ये एक लार्ज सा पार्ट है दैट इज हैविंग द सेंट्रल न्यूक्लियस। इसके अलावा इसके अराउंडिंग में जो है पूरा साइटोप्लाज्म होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईच एंड एवरीथिंग, तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं दैट आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ये सब प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो फ्रॉम द सेल बॉडीज ऑन द above side of the cell body you can see the branched structures, these are the cytoplasmic processes, ठीक है। इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। इनका काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ठीक है, और इसको सिग्नल करना टुवर्ड द सेल बॉडी, ओके। देन हमारे पास जो है वो थर्ड है एक्सॉन्स। एक्सॉन्स जो है, these are relatively long cylindrical processes that conduct the signals away from the cell body. यानी डेंड्राइट्स का काम होता है टुवर्ड्स द सेल बॉडी इंफॉर्मेशन को लेके आना, और एक्सोन का काम है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इंफॉर्मेशन को लेके जाना, ठीक है। Now we have some neurons that are covered by the myelin sheath. तो इन न्यूरॉन्स को हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स भी कहते हैं या न्यूरोलिमोसाइट्स, ठीक है। शीथ, ये जो हमारे पास सेल्स हैं दैट आर कवर्ड बाय द माइलिन शीथ। स्पेसिफिकली ये माइलिन शीथ जो है ये एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक्सोन के ऊपर जो है वो माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, और ऐसे सेल्स को हम कहते हैं श्वान सेल्स और न्यूरोलिमोसाइट्स, ठीक है। पहले इनको श्वान सेल्स कहा जाता था, अब इनको हम न्यूरोलिमोसाइट्स कहते हैं। तो इनमें होता इस तरीके से है कि जो माइलिन शीथ है वो कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है, डिसकंटिन्यूस होती है। और यानी जगह जगह पे जो है वो इसमें रुकावटें हैं, और जो रुकावटों वाली जगह होती है उसको हम नोड कहते हैं, जिसकी वजह से एक श्वान सेल में से जब इम्पल्स गुजरती है तो वो नोड टू नोड जंप करके जाती है, इसकी वजह से उसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। So speed of the impulse traveling through the myelinated neuron is much faster than through the other neuron. Okay. Now the neuron communication. Okay, ji. So we are having the resting membrane potential here. Okay. So what is resting membrane potential? Resting membrane potential एक ऐसा potential है जिसमें एक न्यूरॉन या एक नर्व जो है वो कंडक्शन फेज में नहीं होती, यानी उसमें से किसी किस्म की कोई इम्पल्स ट्रेवल नहीं कर रही, ठीक है। अब इसमें अगर हम चार्जेस को देखें तो ये हमारे पास एक न्यूरॉन है। व्हेन अ न्यूरॉन इज इन द रेस्टिंग कंडीशन, सो इनसाइड ऑफ द न्यूरोनल सेल इज मच नेगेटिव देन आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। जो फ्लूइड अंदर वाली साइड पे है वो मोर नेगेटिव है than the fluid that is present outside the cell. और जो हमारे पास नेगेटिविटी है इनसाइड द सेल या जो पॉजिटिविटी है आउटसाइड द सेल, इट इज ड्यू टू द रिलेटिव नंबर ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस, ओके। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, सो इट्स -70 मिली वोल्ट्स फॉर द न्यूरोनल सेल्स। नाउ फैक्टर्स मेंटेनिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सबसे पहला फैक्टर है जी हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, यानी हमने अब ये बताना है कि द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन व्हाई इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड व्हाई द आउटसाइड इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो फर्स्ट चीज है हमारे पास सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। अगर हम देखें सोडियम और पोटेशियम आयंस की अमाउंट को, तो सोडियम आयंस जो हैं दीज आर हाईली कंसंट्रेटेड इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड पोटेशियम आयंस आर हाईली कंसंट्रेटेड इनसाइड द एनवायरनमेंट, ओके। यानी हाईली कंसंट्रेटेड हैं पोटेशियम आयंस अंदर वाली साइड पे और सोडियम आयंस बाहर वाली साइड पे। तो अब हमारे पास जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है इसमें सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, ठीक है। ये ऐसा पंप है जो एटीपी को यूज करके मूवमेंट करवाता है मॉलिक्यूल्स की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
सो एज वी नो कि सोडियम आइंस बाहर वाली साइड पे ज्यादा प्रेजेंट है और अंदर वाली साइड पे कम है. सो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की हेल्प से सोडियम आइंस एट वन टाइम 3 सोडियम आइंस हैं वो बाहर मूव करते हैं, एंड 2 पोटाशियम आइंस मूव इनसाइड द सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है. तो एज यू कैन सी हियर, क्योंकि मोर पॉजिटिव आइंस बाहर जा रहे हैं और लेस पॉजिटिव आइंस अंदर आ रहे हैं, तो इस वजह से अंदर वाली साइड पे नेगेटिविटी एस्टेब्लिश हो जाती है. ठीक है. इसको समझने के लिए सिर्फ इतना सा ही हिंट काफी होता है, दैट मोर पॉजिटिविटी इज मूविंग आउट एंड लेस पॉजिटिविटी इज मूविंग इन, दैट्स व्हाई इनसाइड इज मोर पॉजिटिव. ओके. सेकेंड थिंग इज लीकेज ऑफ पोटाशियम आइंस, कि जो हमारे पास थोड़े बहुत पोटाशियम आइंस अंदर एंटर होते हैं, क्योंकि ये जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है इट इज परमिएबल फॉर द पोटाशियम आइंस ओनली बट नॉट फॉर द सोडियम आइंस. तो जो हमारे पास पोटाशियम आइंस हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन परमिएबल है फॉर द पोटाशियम आइंस, so only the 2 potassium ions are going to move along with 3 sodium ions in one step. तो जो थोड़े बहुत पोटाशियम आइंस अंदर एंटर होंगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू लीक आउट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से मैक्सिमम पोटाशियम आइंस यानी पॉजिटिविटी सेल से बाहर मूव कर जाती है, लीडिंग टू द नेगेटिविटी इनसाइड द सेल. नेक्स्ट है नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस. तो मेम्ब्रेन की जो इनर साइड होती है यानी न्यूरॉन के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस वगैरह ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनसाइड द न्यूरॉन इज मच नेगेटिव. नाउ इज द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्स को अब हम डिस्कस करेंगे. एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो कि नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करता है, दैट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. So we are having the factors that maintain the action membrane potential. तो फर्स्ट स्टेप है जी हमारे पास डीपोलराइजेशन. अब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक चीज ये होती है कि सेल की जो इनसाइड है वो मोर पॉजिटिव हो जाती है और आउटसाइड नेगेटिव, यानी चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं. तो ये चार्जेस कैसे मेंटेन हुए हैं इनको अब हम डिटेल में देख रहे हैं. फर्स्ट स्टेप है डीपोलराइजेशन. तो डीपोलराइजेशन में क्या होता है जी, कि जैसे ही एक स्टिमुलस आता है, एज यू कैन सी हियर कि न्यूरॉन जो है वो -70 पे रेस्टिंग कंडीशन में है, तो जैसे ही एक स्टिमुलस आएगा, ठीक है, तो सोडियम गेट्स ओपन हो जाएंगे. पहले हमने सोडियम पंप्स की बात की थी जो एक्टिवली मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाते हैं. अब हम गेट्स की बात कर रहे हैं जो अलंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कराते हैं मॉलिक्यूल्स की. सो the sodium gates, when the sodium gates will be open, so मैक्सिमम सोडियम आइंस हायर कंसंट्रेशन से यानी बाहर से सेल के अंदर मूव करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से अंदर वाली साइड पे पॉजिटिविटी स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. सो इनफ्लो ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस कॉज द पोटेंशियल फ्रॉम -70 to 0, यानी पोटेंशियल -70 से 0 पे चला जाएगा और अल्टीमेटली पॉजिटिविटी इनसाइड द सेल इतनी ज्यादा हो जाएगी दैट इट विल रीच टू द +30 और +50. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप है रीपोलराइजेशन. ये फेज थी हमारे पास डीपोलराइजेशन की. नेक्स्ट फेज है जी रीपोलराइजेशन. तो रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि सोडियम गेट्स तो हो जाते हैं क्लोज और पोटाशियम गेट्स हो जाते हैं ओपन. ठीक है. When depolarization reaches a certain level, sodium channels are sensitive, they will open and more sodium ions move inside. Neurons becomes positive in the inside, and after that the sodium gates close. ठीक है. यानी अब हम repolarization को यहाँ से start कर रहे हैं कि sodium gates close हो जाएंगे जब positivity establish हो जाएगी, जब action potential कंप्लीट हो जाएगा तो सोडियम गेट्स क्लोज हो जाएंगे, लेकिन अब पोटाशियम गेट्स ओपन होंगे और ये गेट्स भी पोटाशियम आइंस को अलंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी इनसाइड से आउटसाइड डिफ्यूज करवाना शुरू करेंगे. ठीक है. तो बहुत सारे मैक्सिमम पोटाशियम आइंस सेल के अंदर से बाहर चले जाएंगे और जिसकी वजह से अगेन सेल के अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी. तो इस फेज को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन. जैसे हम देख रहे हैं कि अब अगेन जो है वो नेगेटिविटी एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो चुकी है. थर्ड है जी हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड या हाइपर पोलराइजेशन. नाउ व्हाट इज हाइपर पोलराइजेशन? तो हाइपर पोलराइजेशन में ये है कि रीपोलराइजेशन तो यहाँ तक हो गई, -70 तक दोबारा जो है वो नेगेटिविटी एस्टेब्लिश हो गई बिकॉज पोटाशियम आइंस जो है वो अंदर से बाहर मूव करते जा रहे हैं. और हमें ये पता है कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है इट इज मच मोर परमिएबल फॉर द पोटाशियम आइंस बट नॉट फॉर द सोडियम आइंस.
पोटाशियम आयंस ओपन जब एक दफा हो जाते हैं देन दे आर हार्ड टू क्लोज, वो बहुत स्लोली और ग्रेजुअली क्लोज होते हैं, ठीक है। जब ग्रेजुअली क्लोज होते हैं तो जो हमारे पास मैक्सिमम ऑफ द पोटाशियम आयंस है वो सेल के अंदर से बाहर मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो नेगेटिविटी है वो सेल के अंदर काफी हद तक ज्यादा हो जाती है। इसको हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी ये -70 से नीचे आ जाए तो -80 और -90 तक पहुंच जाएगी। तो ये हाइपर पोलराइज हो गई है हमारे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कि मैक्सिमम पोटाशियम आयंस बाहर मूव करने की वजह से, that the large number of the potassium ions that are rushed out. So this brief period is known as the hyperpolarization or the refractory period, ठीक है। उसके बाद कुछ सोडियम और पोटाशियम गेट्स में चेंजिंग्स होती हैं जो कि इसको मेंटेन कर लिया जाता है और दोबारा 70 -70 तक इसको जो है वो रिकवर कर लिया जाता है थ्रू द रिकवरी फेज। Okay, in fact, the action potential jumps from one to the next node. So this is known as the saltatory impulse. तो ये हमारे पास बात हो रही है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की, जिसमें इम्पल्स एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करके जाती है और ये एक ये जो इंफॉर्मेशन है उसको रैपिडली ट्रांसमिट करेगी। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द साल्टेटरी इम्पल्स। ओके, now, synapse, that is the transmission of the action potential between the cells. जैसे हमने पहले तो देख लिया कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें इम्पल्स ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। तो जब एक न्यूरॉन एंड अप हो जाएगा, सो हाउ दिस इम्पल्स इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड इनटू द नेक्स्ट न्यूरॉन, सो इसको हम डिस्कस करेंगे साइनैप्स में। सो व्हाट इज साइनैप्स? ओके, साइनेप्स जो है ये हमारे पास है जी एक गैप है बिटवीन द एक्सोन एंड ऑफ द वन न्यूरॉन। एज यू कैन सी हियर, ये हमारे पास एक न्यूरॉन का एक्सोन एंड है एंड सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट एंड है, ठीक है। या यहाँ पे सेकंड न्यूरॉन के अलावा हमारे पास कोई हमारा इफेक्टर भी हो सकता है, कोई बॉडी का मसल भी हो सकता है, ठीक है। तो अ स्पेस और अ गैप बिटवीन द एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन and the dendritic ending or muscle membrane of any other part. Okay, तो ये जो है हमारे पास इसको डिटेल में शो किया गया है। ये एक न्यूरॉन का एक्सोनल एंड है, दिस इज द डेंड्राइटिक एंड ऑफ द अदर न्यूरॉन। इन दोनों के दरमियान कोई साइटोप्लाज्मिक जंक्शन नहीं होता, बल्कि एक गैप है, इस गैप को ही हम साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। एंड जो मेम्ब्रेन इस साइनैप्स से पहले न्यूरॉन की है यानी एक्सोन की है, उसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। और जो जो कि इसके बाद में आती है नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन या नेक्स्ट इफेक्टर की मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज द पोस्ट साइनेप्टिक। अब हमारे पास जो है इसका डिटेल स्ट्रक्चर ये है, प्री साइनेप्टिक, द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, एंड नाउ व्हाट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स? सो अगेन यू कैन सी हियर, ये जो हमारे पास साइनेप्टिक नोब है यानी इस एक्सोन का एंडिंग पॉइंट है, इसको हम नोब कहते हैं या बल्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वेसिकल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज वेसिकल्स एंड दीज वेसिकल्स आर हैविंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम डिटेल में देख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दैट हैव बीन सिंथेसाइज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं जी? दे विल बी रिलीज्ड आउट इनटू द साइनेप्स थ्रू द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। जैसे आपको ये नजर भी आ रहा है, थ्रू द एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। एंड फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे विल बी अटैच्ड विद द receptors present on the post synaptic membrane. Okay, so जब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अटैच होंगे, देन उस न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप एक्टिव होगा एंड देन इट विल कॉज, यू कैन से इट विल कॉज द इनिशिएशन ऑफ द नर्व इम्पल्स इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसेप्टर्स के साथ अटैच होंगे ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, तो नेक्स्ट न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें सोडियम और पोटाशियम की मूवमेंट के लिए चैनल्स और गेट्स वगैरह ओपन होंगे और एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो जाएगा। यानी ये जो साइनेप्स साइट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ओके, so this is the detailed process that we have studied about exocytosis, synaptic vesicles and all that. Okay, so the next thing is one common neurotransmitter is the chemical that is known as the acetylcholine.
एंड द एन अदर इज नोरएपिनेफ्रिन। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके नेम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। And when the released neurotransmitters bind with the receptor proteins on the postsynaptic membrane, it causes depolarization in that membrane, leading to the initiation of the nerve impulse. Okay, now we are having a sketch of the nervous system. The nervous system is divided into the peripheral nervous system, which will include three types of the neurons, and the central nervous system, which includes the spinal cord and the brain. Okay, and peripheral nervous system includes the motor neurons and the sensory neurons. And motor neurons are further divided into, on the basis of motor neurons, the nervous system is being divided into somatic and autonomic. अगर हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स तो हैं, इनके लिए रिसेप्टर्स इफेक्टर्स जो है वो हमारे मसल्स हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये वो वॉलंटरी हैं। सो इट वुड बी अ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बट अगर वो ग्लैंड्स हैं तो इट वुड बी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स एंड इट विल बी एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को जो है वो फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक वो है जिसको हम अपनी मर्जी जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में एक्टिवेट होगा, और पैरासिम्पैथेटिक वो है जो कि रिलैक्स्ड स्टेट में एक्टिवेट होगा। ओके, नाउ वी आर हैविंग द ब्रेन। ओके, ब्रेन का हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड देयर फंक्शंस। We have the brain divided into three parts: the forebrain, midbrain, and the hindbrain. First of all, forebrain जो है it has two parts, the diencephalon and the telencephalon, ठीक है। हमें डायग्राम में भी नजर आ रहा है। जो फोर ब्रेन है इसके दो पार्ट्स हैं, टीलेंसेफेलोन एंड डायंसेफेलोन। टीलेंसेफेलोन के फर्दर पार्ट्स हैं सेरिब्रम, olfactory bulb, limbic system, and corpus striatum. Diencephalon has further four parts: the thalamus, hypothalamus, pituitary gland, and pineal glands. Now, what we have to do? So the two parts, diencephalon, telencephalon. Diencephalon parts are mentioned here. So, what is thalamus? The function of the thalamus is to relay all the sensory information to the higher brain. इसका काम होता है जो हमारे sensory parts यानी eyes से और ears से जो हमारी information आ रही है उसको higher brain centers तक पहुंचाना. Hypothalamus lies below the thalamus. As you can see here, this one is so the hypothalamus lies below the thalamus and regulates many functions, such as it will maintain the body temperature, the sexual drive, carbohydrate metabolism, hunger, and the thirst activities. देन है जी पीनियल ग्लैंड, ये भी हमारे पास डायंसेफेलोन का पार्ट है, ये हमारी बॉडी के रिदम्स को कंट्रोल करता है। एंड लास्ट वन पार्ट था हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिफरेंट तरह की ट्रॉपिक नेचर के हार्मोन्स रिलीज करता है। नाउ वी आर हैविंग द टीलेंसेफेलोन, और टीलेंसेफेलोन में जो है वो corpus striatum present है, and this corpus striatum has the external part that is known as the cerebrum. As you can see here, cerebrum जो है, this is the largest part of the brain. Okay, and cerebrum is being divided into the left and the right grooves that are known as the left and the right cerebral hemispheres. And in mammals, the outermost part of the cerebrum is called the cerebral cortex. Okay, so the functions of the cerebral cortex includes the primary sensory areas and the primary motor areas, perception of the visual or auditory signals, यानी इसका काम ये होता है कि थैलेमस से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और इसको जो है वो रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना. And it is also involved in the language, both the written and the spoken language. Next is the midbrain, that is known as the mesencephalon. Okay, mesencephalon. So, midbrain functions include the tactile or touch and auditory or hearing input. यानी ये इन सब चीज़ों से related होते हैं, touch और hearing input से related हैं, but it did not change in size. And the roof of the midbrain is called the optic tectum, and it is a thickened area of gray matter that integrates the visual and auditory signal. Optic tectum का भी जो function है वो auditory और visual signals को जो है वो deal करना है. Next is the hindbrain, that is the rhombencephalon, and
द हाइंड ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये हमारे पास हाइंड ब्रेन स्टार्ट हो जाता है और हाइंड ब्रेन जो है फिर वो कनेक्टेड होता है, सॉरी यहाँ पे हाइंड ब्रेन जो है वो कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड से। एंड हाइंड ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स, द मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोनस। तो पहले हम देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को। एज यू कैन सी हियर, medulla oblongata is directly leading to the spinal cord. Okay, it is the enlargement where the spinal cord enters the brain. इसमें इसके फंक्शंस क्या हैं? ये जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग है, स्वेलोइंग है, हार्ट रेट यानी कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस हैं और गैस्ट्रिक सीक्रेशंस हैं। सेरिबेलम जो है, इट इज एन आउट ग्रोथ ऑफ द मेडुला। एज यू कैन सी हियर, मेडुला की एक आउट ग्रोथ है, ठीक है। ये हमारी मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, यानी दैट इज एसोसिएटेड विद द लिम्ब मूवमेंट, मेंटेनिंग द बॉडी पोस्चर, बॉडी ओरिएंटेशन, बॉडी पोजीशन, ठीक है। तो ये सब जो है वो हमारा सेरिबेलम पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज द पॉन्स। पॉन्स इज इंक्लूड इन रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग, ठीक है, यानी ब्रीदिंग ऑटोमेटिक फंक्शन कराना तो मेडुला का काम है, लेकिन ब्रीदिंग का रेट जो है उसको कंट्रोल करना इट इज बाय द पॉन्स। Okay, now we are going to discuss about the vertebrate senses. So first of all, we'll discuss about the hearing and equilibrium in ear. Okay, हम human ear को discuss करेंगे, and human ear is divided into three parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. Okay, first of all, we'll discuss about the outer ear. So, outer ear consists of the auricle and external auditory canal. ठीक है, ये हमारे पास जो है ये बिल्कुल आउटर ईयर है, दैट इज हैविंग द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ओके, नेक्स्ट इज द मिडल ईयर। एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, ये मिडल ईयर है हमारे पास। ओके, मिडल ईयर बिगिंस एट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज द टिम्पैनम और ईयर ड्रम। इसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं या टिम्पैनम भी कहते हैं, ठीक है। दिस कैनाल इज लीडिंग टू द tympanic membrane और द tympanum और द eardrum। तो मिडल ईयर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है and ends inside the skull where two small membranous openings, the oval and the round windows are located. Okay, as you can see here, this one is the round window, ठीक है। तो ये जहाँ पे ओवल और राउंड विंडो प्रेजेंट होती है इनसाइड द स्कल, यहाँ पे ये टर्मिनेट होगा मिडल ईयर। There are three small ossicles that are present between the tympanic membrane and the oval window. ठीक है, तो हमारे पास जो tympanic membrane है और जो oval window है, इसके दरमियान तीन ये आपको जो है वो ossicles नजर आ रही हैं। The names of these ossicles are malleus, that is also known as hammer, ठीक है। And then the second one is incus, that is known as anvil. The third one is stapes, that is known as stirrup. Okay, और इनके जो नाम है ये इनकी शेप्स की वजह से दिए गए हैं। स्टेपिस जो है वो स्मॉलेस्ट बोन है दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। Now, malleus. What is the function of malleus or hammer? It adheres to the tympanic membrane and connects to the incus. ठीक है, ये tympanic membrane और इसके अलावा incus के साथ connected होती है। incus का काम होता है कि incus connected है stapes से and stapes is connected to the oval window. Now, the auditory or the eustachian tube, it extends from the middle ear to the nasopharynx and equalizes the air pressure between the middle ear and the throat. Okay, तो जो हमारे पास auditory tube है, as you can see here, this one, the auditory tube that is known as the eustachian tube. तो इसका काम होता है middle ear में air pressure को equalize करना. Now the inner ear. Okay, so the inner ear has three components. The first two, the vestibule and the semicircular canals. As you can see here, this one is the vestibule and these are the three semicircular canals. Okay, these are concerned with the equilibrium, यानी vestibule और semicircular canals का काम है हमारी बॉडी के equilibrium को maintain करना। और थर्ड है कोकली। कोकली जो है, this one is the कोकली, the rounded shape structure is known as the कोकली। इसका काम होता है हियरिंग, ठीक है, ये हियरिंग में इन्वॉल्व होता है, यानी हियरिंग का प्रोसेस जो है वो इसकी वजह से है। Semicircular canals are arranged so that one is in each dimension of space. Okay, so we have done with the hearing. Next जो हमारे पास sense है that is vision.
ओके, सो विजन में हम डिस्कस करेंगे वर्टिब्रेट आई को। सो विजन इंक्लूड्स द फोटो रिसेप्शन, यानी लाइट जो है उसको डिटेक्ट करने की एबिलिटी वर्टिब्रेट आई की जो है, इट इज द प्राइमरी सेंस दैट वर्टिब्रेट्स इन अ लाइट फिल्ड एनवायरनमेंट यूज, and consequently their photoreceptive structures are well developed. Okay, most vertebrates have eyes that are capable of forming the visual images, and the eyeball. Okay, this one, the eyeball. The eyeball has the lens. This part is the lens. Eyeball parts include the lens. Then the sclera, that is the tough outer coat. This one, sclera, that is the tough outer coat. Third one is the choroid layer, the thin middle layer. As we can see here, this one is the thin middle layer, choroid. And after that, the inner retina. Okay, this one is the most inner layer, retina. On the outer side it's sclera, then choroid, and then retina. So what the retina is containing, retina is containing the photoreceptor cells, light sensitive cells, that are rod and cone cells. Okay, now the cornea. What is cornea? There is transparent cornea present, as you can see here in the front side of the eyeball. The transparent cornea is present. It is continuous with the sclera and covers the front of the eyeball. ठीक है, यानी ये front of the eyeball को cover कर रहा है, और हम देख सकते हैं ये जो यही white वाला जो part है, it is continuous with the sclera, यानी ये sclera के साथ जो है वो attach है. What is choroid tissue? Okay, so choroid tissue also extends to the front of the eyeball. ये जो choroid tissue है, ये वाली जो strip है बारीक सी, it is going to make different parts in the front part of the eye. The first one is the iris. Okay, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों साइड से extend out होके बना रहा है iris. Okay, then is the ciliary body. Iris का function होता है amount of light को control करना. Then is the ciliary body, as you can see here. This one is the iris from the both sides. These are the ciliary bodies. Okay, and the third one is the suspensory ligament. So these are the suspensory ligaments. So ये जो तीन आपको parts नजर आ रहे हैं, this one is the iris, the ciliary body, and these are the suspensory ligaments. Okay, the colored iris is heavily endowed with the light screening pigments, and it has the radial and circular smooth muscles for regulating the amount of light entering the pupil. इसका काम होता है कि जो pupil में light enter हो रही है उसको regulate करना, उसकी amount को control करना. Then a clear fluid is present that is known as the aqueous humor. It fills the anterior and the posterior chambers. This one is the anterior chamber and this one is the posterior chamber. तो यहाँ पे हमारे पास एक fluid होता है जिसको हम aqueous humor कहते हैं, जो anterior और posterior chambers को fill out करता है, which lie between the cells and cornea. ठीक है, तो ये हमारे पास lens है, और lens और cornea जो है इनके दरमियान एक aqueous humor present है. बैक साइड वाला जो है इसको हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, और that is present between the lens and the you can say this choroid part. This is known as vitreous humor. जो लेंस और कॉर्निया के दरमियान है उसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं. ठीक है, lens is behind the iris and a jelly like vitreous body fills the vitreous chamber. Okay, so behind the lens a vitreous body is present that is filled with the vitreous chamber. The moist mucous membrane that covers the eyeball is known as conjunctiva. As you can see here, एक moist सी mucous membrane होती है जो हमें surface of the eye पे नजर आ रही होती है, इसको हम conjunctiva कहते हैं. Okay, so we have done with the senses as well. अब हम कुछ important questions जो है वो discuss करेंगे, which includes the first question, that which of the following is not a function of the cell's glycocalyx? So transport is not the function of the cell's glycocalyx. Number two, a chemical analysis of the plasma membrane or the nuclear envelope would indicate the presence of the proteins and the phospholipids. Number three, the ability of the plasma membrane to let some substances in and keep others out is called the selectively permeable membrane. Number four, the bulk movement of materials into a cell by the formation of vesicles is called endocytosis. Number five, which of the following parts of a neuron contains a nucleus? So that is cell body. Number six, a stimulus that is strong enough to initiate a nerve impulse is called the threshold stimulus. Number seven,
A neurotransmitter changes the dash in the plasma membrane of the receptive segment of the postsynaptic cell, creating the action potential in that cell. So, neurotransmitter changes the resting potential to the action potential. Number 8, which of the following is not the part of the forebrain in the vertebrate? So, that is pons, because it's a part of the hindbrain. Number 9, neurons have two important properties. They're going to excite and they're going to conduct the impulses. Number 10, concentration of the ions on two sides of the nerve membrane is due to the sodium potassium ATPase pump. Okay, so we have done with all the important questions as well. So, dear students and candidates, this topic is very, very much important, and I have covered most, or you can say, maximum of the topics in this chapter, the membrane physiology and the senses. Okay, so wish you very best of luck for your exams. So, for the next time, until the next time, Allah Hafiz.